ناظرین، کائنات ابدی اور لامحدود ہے، اس کا کوئی سرا نہیں، یہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہنے والی ہے۔ اس کا کوئی خالق نہیں، بس یہ خود ہی وجود میں آ گئی۔ صدیوں تک یہ تصورات انسانوں کے ذہنوں پر حاوی رہے اور بالآخر 1905 میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ وقت کے وجود کو اگر مان لیا جائے تو اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی ہونا چاہیے، اور پھر کائنات کے سب سے زیادہ تسلیم کیا جانے والا نظریہ بگ بینگ پیش کیا گیا، جس کے مطابق تقریباً 14 ارب سال پہلے کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی۔ اس دھماکے سے پہلے کچھ نہ تھا اور کائنات ایک نقطے پر قائم تھی، اور پھر ایک دھماکے سے اس کائنات کا آغاز ہوا۔ نظریہ اضافت نے یہ پیشگوئی بھی کر دی کہ کائنات ساکن نہیں بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس پیشگوئی کے محض 17 سال بعد 1920 کے عشرے میں ایڈون پال ہبل اور روسی سائنسدان الیگزینڈر فرائیڈمین کے غیر متوقع تجربات کے نتائج نے اس مفروضے کو بالکل درست ثابت کر دیا کہ وہ کائنات جو سنگولیٹری سے شروع ہوئی تھی وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ہبل ہیں جن کے نام پر بعد میں مشہور ٹیلیسکوپ کا نام رکھا گیا تھا۔ فرائیڈمین کا یہ مفروضہ بھی کہ کائنات کو کہیں سے بھی اور کسی بھی مقام و زاویے سے دیکھا جائے تو وہ ایک جیسی نظر آتی ہے، 100% درست ثابت ہوا۔ نظریہ اضافت میں پھر سوال اٹھایا گیا کہ جب کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی تھی پھر اس کا انجام بھی ایک نقطے پر ہی ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ اضافت کی ایک زبردست پیشگوئی بھی تھی۔ چنانچہ 65 سال بعد 1970 کے عشرے میں مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنز اور ان کے ساتھی ڈاکٹر پین روز نے سالوں کی تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا آغاز ایک نقطے یا سنگولیٹری سے ہوا تھا، اور یہ ایک سنگولیٹری ہی پر انجام پذیر ہوگی جسے انہوں نے بگ کرنچ کا نام دیا تھا۔ اب کائنات کا جدید تصور یہی ہے کہ کائنات نہ تو ابدی ہے اور نہ ہی لامحدود ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے حرکت میں ہے اور ایک خاص مدت کے بعد فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ منظر سائنسی لحاظ سے کائنات کے اختتام کی صورتحال کو بیان کر رہا ہے، جس میں بگ کرنچ ہوگا، کائنات اپنی پہلے والی پوزیشن یعنی سنگولیٹری پر واپس چلی جائے گی۔ کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں جدید تحقیقات نہایت اہمیت کی حامل تھیں، انہوں نے ہمیں نئی گلیکسیز سے متعارف کروایا۔ ہبل دوربین کی بدولت ہم نے کائنات کا وہ حصہ دیکھ لیا جو کہ آج تک انسانی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ ہبل دوربین کی شاندار تحقیق نے کائنات کا بالکل نیا رخ سامنے رکھا اور تحقیق اور جستجو کی نئی راہیں کھول دی۔ بلیک ہول کا کائنات سے کیا تعلق ہے اور بلیک ہول کسی گلیکسی کے مرکز میں ہی کیوں ہوتے ہیں، ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے بلیک ہول کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلیک ہول دراصل ستارے کی زندگی کے مختلف ادوار کی ایک شکل ہے۔ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو پھر اس میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ایک مقام پر وہ سفید یا نیلے ڈوارف سٹار میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا امکان یہ ہوتا ہے کہ ستارہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ یہ دھماکہ سپر نووا کہلاتا ہے، اور اس سے نکلنے والی چمک کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا سورج اپنی ساری توانائی چند سیکنڈز میں خرچ کر دے۔ اس عمل سے نئے ستارے اور کہکشائیں جنم لیتی ہیں، جبکہ آخری ممکنہ صورت یہ ہے کہ ستارہ سکڑنا شروع کر دے اور اس عمل میں اتنا چھوٹا ہو جائے کہ اس کا وجود محض ایک نقطے یعنی سنگولیٹری پر آ جائے۔ اب یہ ستارے کی آخری منزل ہے اور وہ ڈیڈ سٹار کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی روشنی کھو چکا ہوتا ہے۔ تاہم ایک نقطے میں سمٹنے کا مطلب ہے کہ اب اس کا ماس بہت بڑھ چکا ہے، یعنی جیسے ایک پہاڑ کا وزن ایک چمچ میں سما دیا گیا ہے۔ یہ مادے کی بے پناہ ڈینس حالت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس بے انتہا بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ارد گرد موجود گیس اور دھول کو اپنے اندر جذب یا ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے تابکاری خارج ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد اسی روشنی سے بلیک ہول کی نشاندہی ہوتی ہے، ورنہ بلیک ہول کا وجود آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ بلیک ہول کے مقام سے جہاں تک یہ زبردست گریویٹیشنل فورس اثر کرتی ہے اسے ایونٹ ہرائزن کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول اس کے اندر آنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہاں تک کہ روشنی بھی یہاں پہنچ کر بے بس ہو جاتی ہے اور یہاں سے
बाहर नहीं निकल पाती। जिन अजसाम को ब्लैक होल हड़प करते हैं उनसे ताबकार शुआएं खारिज होती हैं और ब्लैक होल के धाने से चलता हुआ मवाद बैरूनी खला में एक मखसूस धारे की शक्ल में बहता है जिसे जेट्स का नाम दिया गया है। ब्लैक होल दूसरे फल्की अजसाम की निस्बत 1 अरब गुना तक मध्यम हो सकते हैं और इनकी मौजूदगी का एहसास इन्हीं जेट्स के जरिए से होता है, जिसमें ताबकारी की मौजूदगी से ब्लैक होल का वजूद साबित होता है। आइंस्टाइन का अमूमी नजरिया इजाफत कहता है कि अगर किसी जिस्म पर बेइंतहा मास रखा जाए तो वहाँ खम, गड्ढे या सुराख की सूरत में पैदा होगा और वक्त रुक जाएगा। हालिया ग्रेविटेशनल वेव्स की दरियाफ्त ने इस नजरिए की तस्दीक कर दी है कि ये लहरें और ब्लैक होल एक ठोस हकीकत हैं जिन्हें अब तक महज नजरियाती तौर पर माना जाता था। ब्लैक होल की जदीद टर्म अमरीकी माहिर फल्कियात जॉन वेलर ने 1969 में इस्तेमाल की थी, जबकि इसका तस्वर 200 साल पहले एक जर्मन साइंसदान जॉन मिचेल पेश कर चुके थे। उन्होंने बताया था कि सितारे के मादे की मिकदार यानी मैस बेइंतहा बढ़ जाए तो रोशनी भी कशिश शकल से बाहर नहीं आ सकती। मिचेल ने इस बात की निशानदही भी की थी कि ब्लैक होल अपने करीबी अजसाम पर ग्रेविटेशनल कुव्वत के जरिए अमल करता है। मिचेल के अलावा 1716 में इसी तरह का ख्याल मारूफ रियाजीदान लैब लेक ने भी पेश किया था, जबकि अमूमी नजरिया इजाफत की रूह से भी इसकी तस्दीक हो चुकी है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग भी कहते रहे हैं कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में गिरने वाले किसी मादे या इंसानी जिस्म की वापसी मुमकिन नहीं है, जबकि हॉकिंग का हालिया नजरिया ब्लैक होल के बारे में कहता है कि वहां से फरार मुमकिन है, लेकिन ब्लैक होल में गिरने वाला जिस्म किसी और कायनात में जा सकता है जो कि बिल्कुल हमारी जैसी कायनात हो सकती है। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में सबसे ज्यादा अमली तौर पर तहकीक की है और उन्होंने ही 45 साल पहले ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का नजरिया पेश किया था। नाजरीन, दरअसल पैराडॉक्स से मुराद ऐसा मामला या हकीकत होती है जो बज़ाहिर तो गलत नजर आ रहा हो लेकिन असलियत में दुरुस्त हो। हॉकिंग के ब्लैक होल पर काम को हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि कायनात में डाटा जाया नहीं होता बल्कि वो किसी न किसी शक्ल में महफूज रहता है। क्योंकि ब्लैक होल से रोशनी भी पलट कर वापस नहीं आती, इसलिए वहाँ होने वाली तब्दीलियों का डाटा हमें हासिल नहीं हो पाता। लिहाजा इस तरीके को मुमकिन बनाया जाए कि वहाँ की मालूमात तक हमारी रसाई हो सके। अगर हमने ब्लैक होल के मामले को हल कर लिया तो यकीनन ये कायनात की साख्त को समझने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि कायनात का आगाज भी एक नुक्ते से हुआ और इख्तिताम भी एक सिंगुलेटरी यानी एक नुक्ते पर होगा। ब्लैक होल की साख्त भी कायनाती खुसूसियात की हामिल है, जिसकी इब्तिदा और इंतहा सिंगुलेटरी पर होती है। ब्लैक होल पर नई तहकीक से ये अंदाजा हुआ है कि कुछ ब्लैक होल तेजी से हरकत पजीर जर्रात को धारों की शक्ल में खारिज करते हैं। तहकीक में लंदन यूनिवर्सिटी के साइंसदान रॉबर्ट सूरिया भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि कहकशां NGC 7793 के ब्लैक होल से खारिज होने वाले इन धारों की लंबाई हैरान कुन है। इनके मुताबिक ब्लैक होल इतना भी सिकुड़ जाए कि फुटबॉल के बराबर रह जाए, लेकिन इससे निकलने वाला हर धारा बहुत दूर तक रसाई रखता है और ये सैयारा प्लूटो के मदार को भी पीछे छोड़ सकता है। ये ब्लैक होल मुख्तलिफ जिसामत में पाए जाते हैं। ब्लैक होल की दरियाफ्त ही से नित नए ब्लैक होल्स की दरियाफ्त का सिलसिला जारी है। दिसंबर 2010 में 2 ऐसे इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स का सुराग लगाया गया था, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल का जिस्म है। ये सूरज से 6.3 अरब गुना बड़ा था। अब तक जिन ब्लैक होल्स को अमरीकी माहिरीन की टीम ने खला में ढूंढा है वो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी के मरकज में वाक़े हैं और सूरज से 10 अरब गुना ज्यादा बड़े हैं। गैलेक्सीज के मरकज में अजीम और देवहकल ब्लैक होल्स का वजूद मुमकिन है और सितारों की अपने ऑर्बिट्स में हरकत इस बात की गवाही देती है कि ब्लैक होल्स इन गैलेक्सीज में तवाज़ुन बरकरार रखने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इस सिलसिले में ये सवाल जहन में उठता है कि क्या कायनात का भी कोई मरकज है। ये बात बज़ाहिर अजीब लगती है क्योंकि ब्लैक होल गैलेक्सीज के मुकाबले में नन्हे मुन्ने होते हैं और इनका वजन भी इतना ज्यादा नहीं और वो जिसामत भी बहुत छोटी रखते हैं, जिनका जिस्म हमारे निज़ाम शमसी से भी कम है, जबकि ये जिस गैलेक्सी में अपना वजूद रखते हैं उसका हुजम अरबों गुना ज्यादा होता है। यहाँ ये सवाल उठता है कि कहकशां के मरकज में मौजूद ब्लैक होल
होल्स कहकशां में क्या कोई किरदार अदा करते हैं? ये सवाल अभी तक एक राज बना हुआ है कि दोनों यानी ब्लैक होल और गैलेक्सीज का आपस में क्या ताल्लुक है। साइंसदानों ने अब तक की तहकीक के मुताबिक 100 ऐसी गैलेक्सीज तलाश की हैं जो निगाहों से गायब थी। इनमें कुछ हमारे सूरज से 1000 खरब गुना तक ज्यादा रोशन है। ऐसे शवाहिद मिले हैं कि इन गैलेक्सीज के अंदर सितारे पैदाइश से पहले ही ब्लैक होल बन गए थे, यानी गोया अंडे मुर्गी से पहले ही पैदा हो गए थे। अमूमी नजरिया अजाफत के 100 बरस मुकम्मल होते ही ड्रामाई तौर पर कायनात और ब्लैक होल्स के बारे में तहकीकात में तेजी से पेशरफ्त हुई है और खास तौर पर ब्लैक होल्स के बारे में नित नई मालूमात सामने आ रही हैं और ब्लैक होल्स जो कि अब तक इंसानों के लिए महज एक राज थे, इम्कानात रोशन हैं कि हम जल्द इनकी असल हकीकत जान लेंगे। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल लहरों का नजरिया पेश किया था जिसे वो अमली तौर पर साबित न कर सके। ताहम ग्रेविटेशनल वेव्स का वजूद साबित होने के साथ ही ब्लैक होल्स की हकीकत और इनकी सच्चाई मुजस्सम हकीकत बन चुकी है। इस दरियाफ्त को अब तक स्पेस रिसर्च का एक अहम वाकया करार दिया जा रहा है। इटली के साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने पहली दफा दूरबीन के जरिए आसमान पर सैयारों और चांद को देखकर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद रखी थी और इस दरियाफ्त को भी वैसा ही समझा जा रहा है। ब्लैक होल्स के टकराने से जबरदस्त तवानाई खारिज होती है और हाल ही में जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए तो इनसे खारिज होने वाली तवानाई की मिकदार सूरज की 15 लाख साल में पैदा की जाने वाली तवानाई के बराबर थी। ये एक ऐसा वाकया था जिसके बारे में साइंसदानों ने दुरुस्त अंदाजा लगाया और फिर इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। ताहम कायनात एक खास हदूद के बाद धुंधली और गैर वाज़ेह हो जाती है और जो कायनात हमें अब तक दिखाई देती है वो 20% से भी कम है और 80% से ज्यादा कायनात डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। डार्क मैटर कायनात में कहकशाओं की पैदाइश जबकि डार्क एनर्जी कायनात के फैलाव में अहम किरदार अदा करती है। ताहम ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत मददगार साबित होंगी। यूं समझिए कि साइंसदान अब एक नए रास्ते पर गामजन हैं जिससे अब कायनात को देखने के साथ सुना भी जा सकता है। अब ये लहरें फ्रीक्वेंसी में ढल चुकी हैं जिसने हमें कायनात की सदाओं को सुनने के काबिल बना दिया है और हमारी रिसर्च की सलाहियतों को बेहतर किया है, जिससे तहकीक और जुस्तजू की नई मंजिलों के लिए राहें हमवार हुई हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।